Namaskar. On behalf of Python family, I, Shweta Kumari, welcome you all to our online awareness series on the theme Changing the Perception, Autism and Society. Today is the second day of our program, which will focus mostly on society and challenges that are faced by people with autism. And we are honored to have two eminent personalities, Dr. Fridolini Fritz and Dr. Samir Hassan Dalwai, who have graciously accepted our request to speak today. For those who are new to PISM or joining our events for the first time, PISM or Paramhans Yoganand Society for Special Unfolding and Molding is a voluntary non-profit organization based in Lucknow, Uttar Pradesh that has been working to help and serve individuals with intellectual disabilities since its inception in the year 2005. Here in PISM, we have a twofold approach to specialized care and the holistic development of our angels. PISM envisions an inclusive society on the grounds of spiritual disciplines. Today, when scientific research is establishing the benefits of yoga and meditation to the lives of people with intellectual disabilities, Team PISM feels humbled that since its foundation, we have followed the how to live principles and teachings of Paramhansa Yogananda to benefit the individuals with special needs. So in PISM, we have a tradition to commence any event with a prayer. So I request everyone to join me and repeat after me, please. Heavenly Father, may thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and through goodwill and service, may we be able to awaken thy love in all hearts. Om, peace, Amen. Uh, the theme of today's talk is society and challenges. पर जिस तरह का अभी माहौल पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, इस समय में पूरी सोसाइटी ही कोविड-19 के एक चैलेंज से जूझ रही है। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस अंजू मिश्रा जी को, डायरेक्टर पाइसम, कि वो कुछ शब्द कहें और हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं डॉक्टर समीर दलवई, उनको इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू श्वेता। डॉक्टर समीर हसन दलवई, अगर डिग्रियों की बात करेंगे तो बहुत लंबा है। एमडी, डीसीएच, डीएनबी, एफसीपीएस, एलएलबी, but we know him as Dr. Samir Dalwai, a developmental and behavioral pediatrician. He is the recipient of Government of India's Rajiv Gandhi Manav Seva Award for services to children in 2012. Dr. Dalwai is attached as visiting developmental pediatrician to the Hinduja Healthcare Hospital and Nanavati Super Speciality Hospital, and was earlier attached to the Learning Disability and Neurodevelopmental Pediatrics Clinic at Lokmanya Tilak Municipal General Hospital and Medical College. Dr. Dalwai मुंबई में न्यू होराइजन्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, उसके फाउंडर हैं। ये 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे इसके अब कई जगह अलग अलग सेंटर्स हैं। इसमें क्लिनिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, रेमेडियल एजुकेटर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे ही इनके साथ काम करते हैं। 110 डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस भी हैं डॉक्टर दलवई की टीम में। इनका एक्सपर्टीज है और ये पर्सनली सारे सेंटर्स में प्रयास करते हैं, खुद बच्चों के साथ कंसल्ट करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर दलवई से रिक्वेस्ट है कि वो आए। वेलकम डॉक्टर दलवई, सो नाइस टू सी यू हियर। बहुत 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 शुक्रिया। नवाबों के शहर में आने के लिए हमेशा इंतजार होता है, मगर अफसोस
ऑनलाइन ही नवाबों के शहर का आज दर्शन हो रहा है। और कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा पिछले फरवरी में आए थे, बहुत जल्द आ जाएंगे। सबसे पहले नमस्कार, आदाब आप सभी को। इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ कहा होता कि नवल जी के छोटे भाई है तो भी काफी था, मगर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा रिश्ता जो है वो ये वाला रिश्ता है। यहाँ से कोई डॉक्टरी वॉक्टरी की बात है ही नहीं। और मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है कि बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, बाकी हर प्रोफेशन के लोग भी हैं। तो थोड़ा इसी तरीके से थोड़ा बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल नहीं बात करेंगे। इज दैट ओके? Again, my respects to all the seniors, all the colleagues, all my friends who are here on behalf of the Indian Academy of Pediatrics and the Indian Academy of Pediatrics chapter of Neurodevelopmental Pediatrics. These are the guidelines for autism that are published, open access, anybody can go and see them. तो जो थियरी ऑटिज्म के बारे में आप जानना चाहोगे वो सारी थियरी इसमें है, क्योंकि नेशनल कंसेंसस स्टेटमेंट था, नेशनल गाइडलाइंस थे ऑटिज्म के। और ये इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री है। आप मई 2017 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो गाइडलाइंस है, जो ऑल इंडिया पीडियाट्रिशियंस एसोसिएशन ने बनाई है, व्हिच आर वैलिड फॉर ऑल द सबकॉन्टिनेंट, यू कैन ऑल व्यू देम हियर। We all know that it is a very common neurodevelopmental disorder. Almost 2% now of children are having this issue, and males are affected 4 times more common than female. और अभी एक ही टर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसी के अंडर सारे पुराने जो टर्म्स थे वो सब आ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा डेटा देखें तो एक सिर्फ हमारे सेंटर का एक डेटा है, ऑल इंडिया का डेटा तो बहुत ही ज्यादा होगा, मगर एक सिंगल सेंटर में भी अगर आप देखेंगे तो 8 साल का जो हमारा डेटा है, 2008 के पहले हमने अनफॉर्चुनेटली डेटा इतने अच्छे से रखा नहीं था, मगर 2009 से हमने जब टाटा इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन शुरू की थी, तो ये डेटा है साल दर साल आप देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से बढ़ रहे हैं सेंटर में आने वाले। अफसोस ये था कि उन दिनों भी एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस जो सेंटर में था, विच वॉज मोर देन 5 और 6 years। और फॉर्चुनेटली नाउ वी आर सीइंग, आप लोगों ने जो काम किया है उसके वजह से अवेयरनेस इतनी अच्छी हो गई है कि लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ये रहा डेटा अराउंड 3 years, ना सिर्फ ऑटिज्म का मगर ADHD भी है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, सबनॉर्मल IQ है, all kinds of issues which are diagnosed together. And I feel it is very important for a center to be like PISM, where all kinds of children are welcome. Because when we work with all kinds of children, we really understand the subject very well, rather than only sticking to one particular kind of an issue. तो जैसे हमारे डेटा भी आप देखेंगे कि most of the children are undergoing reevaluation. There are children with subnormality, children with other issues. But if you see the number of children with autism, it was increasing regularly. And across this 3-year span, we had 244 children till 2015. मगर जस्ट परसों में हमारा नया डेटा दिख रहा था, 2018-19 का ये एनालाइज होके आ रहा है। सिर्फ 2018 में 250 बच्चे थे, मगर इतने स्पीड से चल रहा है। हालांकि 78 years बैक इस चीज को सबसे पहले डॉक्टर लियो कैनर ने बताया, और उनके बाद हैंस एस्पर्जर में। ये भी कहा जाता है कि उसके पहले रशियन साइंटिस्ट थी, शेवरेन का उनका नाम है, जिन्होंने 1923 में शायद इसी के बारे में जिक्र किया था। मगर इतने सालों बाद भी अगर आप ऑटिज्म को समझने जाएं, आप अगर उसके बारे में स्टडी करने जाएं, तो आपके सामने ऐसे एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं और DSM क्राइटेरिया आ जाते हैं, अलग अलग चीजें आ जाती है, जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर लगता है कि भाई ये समझने नहीं का पॉसिबल ही नहीं है, शायद मुझे ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर ऐसा है कि वो हर आदमी अपना तर्क लगाना शुरू करता है। जैसे वो एक कविता थी, 7 Blind Men of हिंदुस्तान, जो लोग एक हाथी को देखने गए थे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो हर आदमी ने जिस जगह पे हाथी को हाथ लगाया उसे लगा हाथी वैसा ही है, तो उसने वो समझ लिया। और ये मेरा अनुमान है कि ऑटिज्म के बारे में यही हुआ है। जिसी को भी जो सिम्टम सामने नजर आया, किसी को रेपिटेटिव बिहेवियर आया, समझ में आया, तो उसने उसकी अलग से डिफिनेशन बना दी। किसी को इम्पेयर्ड स्पीच नजर आया तो उसने स्पीच के बारे में काम किया। किसी को रीडिंग राइटिंग के डेफिसिट में समझ आई तो उसने उसके बारे में काम किया। किसी को ये समझा कि इनको बहुत ही फैंटास्टिक मेमोरी है कोई चीजों की, तो इन्होंने सबको जीनियस बना दिया। तो ये अलग अलग चीजें जो सही, सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जैसे वो हाथी को जहां पे भी हाथ लगाओगे वो तो हाथी का भाग तो जरूर है, हाथी का अंग जरूर है, मगर वो पूरा हाथी नहीं है। और मोर इम्पोर्टेंटली, हाथी अब यहाँ पे आया कहां से, हाथी की पैदाइश कहाँ हुई, हाथी इतना बड़ा कैसे हुआ। हाथी की स्टोरी बिना जाने अगर हम सिर्फ हाथी के पाँव को टच करके हम कहें कि ये पिलर जैसा है,
तो ये गड़बड़ी जरूर होने वाली है। और इसलिए जब ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है। कोई दो ऑटिज्म एक्सपर्ट नहीं है दुनिया में जो कहे कि एक ही ट्रीटमेंट आपको दे दे। हर बंदा अपने आप से अलग ट्रीटमेंट बताएगा। कोई सेंसरी इश्यूज बताएगा, कोई स्पीच के बारे में बताएगा, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताएगा, कोई रीडिंग राइटिंग रेमेडियल बताएगा, कोई एबीए बताएगा। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि भैया करना क्या है। और 78 ईयर्स किसी सब्जेक्ट के बाद अगर आज यही हाल है तो जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं या जो डॉक्टर हैं वो सोचते हैं कि भाई बेटर कि इसे अवॉइड किया जाए या कोई जो इस पे काम करता है उसे रेफर किया जाए। मगर मुद्दा ये है कि इस तरीके से रेफर करने के बाद एंड पॉइंट क्या आता है? क्या हम देखते हैं कुछ बेनिफिट हो रहा है? जैसे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं कि बच्चा आता है हम रेफर कर देते हैं फलाना फलाना थेरेपी या फलाना फलाना चीज के लिए, उसके बाद बच्चा कभी वापस आता ही नहीं है और ना डॉक्टर चाहता है कि मेरे पास आए। अचानक 2-3 साल के बाद वो पेरेंट्स फिर से एक बार आते हैं दूसरे बच्चे को लेके, चेकअप करिए डॉक्टर साहब। तो कहते हैं भैया आप आए थे 2-3 साल पहले, वो बच्चे कैसा है बच्चा? तो भाई उसकी तो आपने जहाँ भेजी थी थेरेपी तो चल रही है। अच्छा क्या प्रोग्रेस है? सब प्रोग्रेस क्या है? तो 2-3 वर्ड बोल लेता है, थोड़ा बहुत समझ लेता है। काम स्कूल वूल जाता है नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें बताया स्पेशल चाइल्ड है, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही है, आप एक्सेप्ट कर लो, दूसरा बच्चा के बारे में सोचो। अब तो ऐसा, तो ये टाइप ऑफ जो एटीट्यूड है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये ठीक भी बिल्कुल तरीके से नहीं हो सकते। ये एक बहुत ही नकारात्मक अप्रोच है, क्योंकि जब हम बिगिनिंग इसी से करते हैं तो किसी को नाउम्मीद करने से कोई सब्जेक्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं जिक्र करूंगा। एक फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, आपके रिलेटिव्स में देखा होगा, एक 10 साल का बच्चा क्लिनिक आया, यूएस में बोर्न ब्रॉट अप, डायग्नोस्ड एज ऑटिज्म एट 3.5 years। और अभी यूएस में आप इमेजिन करिए बहुत ही अमीर पेरेंट्स थे, उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर जो अमेरिका में अवेलेबल है, बेस्ट ओटी, बेस्ट स्पीच थेरेपी, रेमेडियल एजुकेशन, 25-25 घंटा एबीए पर वीक, 25-25 घंटा एवरी वीक थेरेपी करा रहे हैं, काफी मेहनत मशक्कत की। आपके क्लिनिक में आते हैं तो मम्मी कहती है डॉक्टर साहब के पाँव छुओ या डॉक्टर साहब को नमस्ते करो, तो बच्चा नमस्ते डॉक्टर अंकल, नमस्ते डॉक्टर अंकल, एक ही टोन में बार बार बात करता है। और फिर जितने लोग हैं क्लिनिक में सबको नमस्ते अंकल, लेडीज को भी जेंट्स को भी सभी को नमस्ते अंकल बोल देता है। आप जितना देखते हो बच्चे को आपको लगता है कि बच्चे में कोई मुश्किल है जो समझ नहीं आ रही है, और आप ज्यादा परेशान इसलिए हो कि माँ किस कदर बच्चे को हैंडल कर रही है। ऐसा है कि जैसे माँ ना हो वहां पे तो बच्चा कंफर्टेबल ही ना हो, माँ भी कंफर्टेबल ना हो बच्चे के बगैर, तो इसे आप इंडिपेंडेंस कहोगे या डिपेंडेंस कहोगे? बच्चा माँ पे डिपेंडेंट, माँ भी बच्चे पे डिपेंड है, क्योंकि उसके बगैर बच्चा कोई भी चीज ठीक नहीं कर रहा है, और एक बिल्कुल रोबोट की तरह बच्चे को बनाया हुआ है, और मदर हैज टू बी अराउंड जैसे कंट्रोल करने के लिए। जब पूछा माँ से तो कहा कि नहीं तो एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है, वो शैडो टीचर के साथ स्कूल जाता है। हाँ अगर शैडो टीचर नहीं है तो स्कूल में लेते नहीं उसे, मगर शैडो टीचर आएगी रहेगी तो भेजेंगे, बात भी कर लेती है। मगर अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ नर्वस आ जाती है, बिल्कुल नर्वस हो जाती है। और डॉक्टर साहब कहीं पे भी हमें जाना हो तो अभी कोऑपरेट करती है, मगर 3-4 दिन पहले से, हफ्ता भर पहले से उसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आप कल मार्केट जाने वाले, फलाना जगह जाने वाले, तो आप उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो माँ तो खुश है कि ये वेल मैनेज्ड ऑटिज्म है, क्योंकि उसको बताया गया कितनी हॉरिबल चीजें हो सकती है ऑटिज्म में, स्टोरीज बताई गई हैं, यूट्यूब पे तो हर चीज मौजूद है, इंटरनेट पे हर चीज मौजूद है। तो माँ कहती है कि ठीक ही है डॉक्टर साहब, हम तो वी आर एक्सेप्टिंग दिस। एक्सेप्टिंग व्हाट? कि बच्चा यही ट्रीटमेंट जो मिली वही सही थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये नहीं कि बच्चे को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, बच्चा कुछ भी हो एक्सेप्ट तो करना बच्चे को चाहिए, वो ठीक है, मगर क्या हम बच्चे को एक्सेप्ट करो बताने में हमारी ट्रीटमेंट भी एक्सेप्ट करो ये बता रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। तो ये भी इशू आता है कि माँ सोचती है कि भाई अब तक जो तो मैं हूँ हर चीज हम कर रहे हैं, मगर उसके बाद हमारे बाद क्या होगा? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके बाद फिर हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, हम बच्चे के बारे में फिर कुछ कोई ना कोई देखे बच्चे को, ये सब चीजें हम सोच रहे हैं। तो मुद्दा ये है भाइयों और बहनों कि क्या हैव वी बीन कन्विंस्ड that the best outcome in a child with bad autism is a well managed autism? Have we lost hope and stopped working for a more normal life? Can we not look for a better outcome after 78 years of research on this topic? Is this the best that we can do? और अगर इसको हम नहीं मानना चाहते कि इसमें और भी कोई नई इजाद होनी चाहिए, कोई नया संशोधन, नया रिसर्च होना चाहिए,
एक नई आउटलुक के साथ ये देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो 6 जो कविता मैंने बताई कि जहां पे हाथी को हाथ लगाया वही हाथी है, ये वाला किस्सा स्टॉप करना पड़ेगा और डायरेक्ट जो रूट्स है वहां पे जाना पड़ेगा। 1943 में जब ये पेपर लियो कैनर ने लिखा, ये जरूर आप लोग पढ़िए, जिसमें उन्होंने 11 केसेस डिफाइन किए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बच्चे हैं मेरे, जिनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया से, तो उन्होंने ये पेपर ऑटिज्म के लिए नहीं लिखा, इन्होंने लिखा कि ये सारे बच्चे चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। तब तक माना जाता था ऐसे सब बच्चे स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हैं, तो उन्होंने कहा ये स्किज़ोफ्रेनिया के नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ये जो प्रॉब्लम जो भी तकलीफ है या जो भी चीज है, ये पैदाइश से थी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इट कम्स फ्रॉम विद इन, दिस प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम बर्थ। और कमिंग फ्रॉम विद इन को उन्होंने मतलब ऑटिज्म डाला कि अंदर से उपजा हुआ, जन्म से उपजा हुआ, बाहर से ना आया हुआ, मच्छर ने काट लिया मलेरिया हो गया वैसा नहीं, कैंसर हो गया ऐसा नहीं, ये बर्थ से ही है। ये उनका मतलब था ऑटिज्म का। अनफॉर्चुनेटली इस अर्थ का गलत, इस शब्द का गलत अर्थ लगाया गया और उसे सेल्फ इन्वॉल्व का अर्थ दिया गया जो गलत था। एटलीस्ट कैनर की वो मायने नहीं थी। कैनर का कहना था ऑटिज्म मतलब कमिंग फ्रॉम विद इन, पता नहीं किसी ने उसको स्वमग्न या आत्ममग्न या सेल्फ इन्वॉल्व कर दिया, और मेरे ख्याल से गलती और मुसीबत वहीं से शुरू हो गई। कैनर ने तो लिखा तो ये बर्थ से, तो जब बर्थ से है तो हमें देखना है कि बर्थ से बच्चों में क्या हुआ। हम 3 साल तक न रुके देखने के लिए कि इसको अभी तो स्पीच में इम्पेयरमेंट है, अब हम इसका तर्क लगाए कि ये क्या टाइप ऑफ स्पीच प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। और इसलिए वो जानने के लिए हमें उस बच्चों को देखना पड़ेगा, उन बच्चों को देखना पड़ेगा जिनको अब तक स्पीच आने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो, मतलब 1 साल के नीचे के बच्चे। और जब हम ऐसे बच्चे देखते हैं हमें 2 चीजें देखनी चाहिए कि एबनॉर्मेलिटी समझने के लिए, जो ऑटिज्म जिसको हम एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, समझने के लिए पहले नॉर्मल तो समझे, और नॉर्मल समझने के लिए हमें ऐसे बच्चे को देखना पड़ेगा जिसमें स्पीच की उम्मीद ही ना हो क्योंकि वो इतना छोटा है। तो ये एक वीडियो आपके सामने, मेरे जो पेशेंट एक आए थे, हस्बैंड वाइफ है, ये 6-7 साल की बेटी है, जिसका कई दिन तक कई बहुत से जगह उन्होंने उपाय किया था, थेरेपीज किए थे। और ये बच्चा है जो बस अब पैदा हुआ 8-9 महीने का बच्चा, साथ में ले आए, दोनों को आके साथ में बैठ गए, बेटी के लिए साथ में बच्चा था। अब जब हम बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों बच्चों से, अब देखिए कि बच्चों में फर्क क्या है और 8-9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है जो 7-8 साल की बेटी नहीं कर रही। तब अपने समझ में ये आएगा कि ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, क्या ये 2-2.5 साल से शुरू हुआ, क्या ये रिग्रेशन है, या क्या ये पहले से ही हम पिकअप कर सकते हैं। तो ये दोनों बच्चों के बारे में देखिए, जो बेटी है वो ऑटिज्म से है और जो बेटा है बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले देखिए, बच्चा मेरे पास आने से कतरा रहा है, मतलब ये जान रहा है कि ये सामने कोई बैठा अनजान व्यक्ति है, मैं मेरे माँ बाप के पास महफूज हूँ। तो ये फर्क समझ रहा है, मेरे माँ बाप मेरे पीछे हैं और ये सामने शख्स है, ये स्ट्रेंजर है। ये स्ट्रेंजर एंजाइटी का एहसास होना, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एहसास ये है कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो मेरे जानने वाले हैं, सामने जो आदमी है वो अनजान है, स्ट्रेंजर है, और इसका फोकस पीछे जो लोग हैं उनसे है और सामने जो आदमी है उससे ताल्लुक है, और उसी पे उसका फोकस है। और उसी दरमियान बेटी को देखिए किस पे फोकस है। सॉरी अब तक तो कोई खास भाव नहीं दे रही मुझे, मगर एक बार कनेक्शन बन जाए इंसान के साथ तो 8-9 महीने का बच्चा भी किस तरीके से इंटरैक्ट और कम्युनिकेट करता है देख लीजिए। अब एक बार दोस्ती हो गई तो इसका लगाव देखिए मेरी तरफ क्या है। 8-9-10 महीने में मैं उम्मीद नहीं करता कि बोले डॉक्टर साहब हाउ आर यू, डॉक्टर अंकल हाउ आर यू, मैं उम्मीद नहीं कर रहा ये, मगर फिर भी बिना बोले एक रिश्ता जो बन जाता है वो देखिए।
और इस लड़की ने अब तक किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसका ध्यान जो है पूरे वक्त सिर्फ वस्तुओं में और चीजों में लगा हुआ है। अब देखिए क्या करेगा बेटा, अभी हाथ देखिए उसके, बिल्कुल हाथ कर रहा है मेरे तरफ आने के लिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब मेरी आंखें देखिए, मैं बेटी की तरफ देख रहा हूं, मैं उसके तरफ नहीं देख रहा, फिर भी वो मेरे तरफ देख रहा है। तो ये आई टू आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये गलतफहमी है। आई टू आई कांटेक्ट की की बात नहीं है, एक मतलब है, एक एहसास है, एक तवज्जो है। तो आप तो लखनऊ वाले हैं तो आप समझेंगे, बच्चों की तवज्जो देखो कहाँ पे है, इसकी तवज्जो लोगों में है, इसका ध्यान जो है लोगों में है, इसका एहसास लोगों से है, उसे एहसास है कि मेरे करीब लोग हैं, उसकी मग्नता जो है वो मनुष्य में है। और ये बेटी जो है उसमें देखिए, ये अब तक हमारी तरफ देख रहे हैं, बेटी को किसी से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ चीजें दिख रही है। ये देखिए, अभी मैं फादर से बात कर रहा हूँ लेकिन छोटे भी हमारी तरफ देख रहे हैं। अभी मैं बेटी की तरफ गया, फिर भी ये देखिए, एक एहसास है, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो मैं तो देख ही नहीं रहा उसकी तरफ, मगर उसे एहसास है कि ये सामने एक व्यक्ति है जिससे अभी मैं मिला था। और ये बेटी है, इसे माँ बाप कहाँ इनका भी लेना देना नहीं है, एहसास नहीं है कि शी इज ऑब्लिवियस टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। छोटा देखिए, आप देख रहे हैं हर मेरी मूवमेंट फॉलो कर रहा है, वो आंखों की तरफ बात नहीं है, वो एक एहसास है, इसलिए आंख फॉलो कर रही है मुझे। तो जो मेन चीज हम बता रहे हैं कि इस बच्चे में एक एहसास, जिसको हम इंटरैक्शन कह सकते हैं विद ह्यूमंस, मनुष्य मग्नता है, इंसानों की तरफ तवज्जो इंसानों में है, अवेयरनेस इंसानों में है। और इस बेटी का आपने 10 चीजें और मार्क की होंगी कि उसका वर्बल बहुत पुअर है, नॉन वर्बल भी पुअर है, रिपीटेडली हमिंग साउंड्स कर रही है, एको ले लिया है, ये सब तमाम चीजें सही माने में आपने देखी है। मगर एक चीज जो इस बच्चे में शायद 7, 8, 9 महीने में भी नहीं थी, जो इस बच्चे में है, जो है सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि इसमें आज भी लोगों का एहसास या लोगों के प्रति एहसास, तवज्जो, मग्नता नहीं है। और इसलिए जब हम ऑटिज्म पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है भाई। एबनॉर्मल तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन पहले नॉर्मल तो समझे। और अगर ये सोशल कम्युनिकेशन डोमेन का प्रॉब्लम हम कहते हैं, तो सोशल कम्युनिकेशन डोमेन में नॉर्मल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, हमें लगता है बात करना चाहिए। क्योंकि मेन कंप्लेंट जो बच्चे आपके पास पेरेंट्स आते हैं क्लिनिक में, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा, मतलब शुरुआत बात से ही होती है, बात से ही शुरू होती है कि मेरा बच्चा बातचीत नहीं कर रहा। अब ये सवाल है कि अगर बच्चा बातचीत ही, जो बातचीत करने की एबिलिटी है, ये प्राइमरी एबिलिटी होती, तो जिस दिन पैदा हुआ दूसरे दिन से बात किया होता भाई, दूसरे दिन से क्यों नहीं बात किया? क्यों हर बच्चा 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल के बाद बात करता है? तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होता होगा बातचीत करने के पहले। तो सबसे पहले क्या होता होगा बर्थ के बाद, पैदा होने के बाद? तो ये हमारा एक थियरी जो बता रहे हैं हम, जो हम न्यू होराइजन्स में हम इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, कि जिसको हम कहते हैं मनुष्य मग्नता। पैदा होने के बाद बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि दुनिया में लोग होंगे और चीजें होंगी, कोई पता नहीं कि माँ कौन है, पिताजी कौन है। ये मनमोहन देसाई जो पिक्चर बनाते थे ना बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म बनाते थे, उनके पिक्चर में होता था कि 25 साल के बाद भी किसी को देख लिया, पहचान लिया कि ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, फिर गले में लॉकेट था वगैरह। ये ऐसा नहीं होता। बच्चे जब पैदा होते उन्हें पता नहीं होता माँ कौन है, पिताजी कौन है, माँ का कंसेप्ट भी पता नहीं है, इंसान का कंसेप्ट पता नहीं है, चीजों का पता नहीं है। सिर्फ आंख खोलता है, सामने चीजें दिखती है, आवाजें आती है, समझ कुछ नहीं आता। मगर जब बच्चा रोता है, जब भूख लगती है, तो देखता है कि भाई मेरे सामने से क्या चेंज हो रही है, क्या जब मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो पूरे विश्व में एक एंटिटी जो आती है, बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है, उसको काम डाउन करती है, तो बोलता है भाई जब मैं रोता हूं तब पूरे जगत से एक ही एंटिटी है जो मेरे को रिएक्ट करती है, मेरे रोने का जिसको रिस्पॉन्स देती है, और मुझे शांतता या खुशी मिलती है उसके बाद। तो क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान दूं। और बाकी चीज, दीवारें तो कुछ नहीं करती, मैं जितना भी रो लिया, दीवार को तो फर्क नहीं पड़ता, टेबल को फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको फर्क पड़ता है उस तरफ मैं ध्यान दूं।
और इसलिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा तवज्जो उधर देता है, और उधर मतलब माँ की तरफ या पिताजी की तरफ या मौसी की तरफ या जो भी इंसान है उसकी तरफ। और बच्चे को ये फर्स्ट कंसेप्ट हो जाता है कि दुनिया में दो प्रकार हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। और ये कैसे समझ आता है? क्योंकि जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ घटक है इस विश्व में, और कुछ घटक है जो मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करते, और जो इंटरेक्ट करते हैं ऑब्वियसली दे आर द ह्यूमंस और इवन एनिमल्स, but the non-interactive ones are the object world. So because the child is driven by his needs, he will focus more and more on that which gives him support. और ये करने से उसकी मग्नता, उसकी तवज्जो, उसका ध्यान जो है इंसानों में ज्यादा आता है। ये पहली स्टेप है। अगर ये स्टेप कामयाब हुई तो दूसरी स्टेप है कि वो इंसानों को देख कर सीखता है कि भैया ये लोग करते क्या है, ये लोग किस तरीके से, किस कदर बैठते हैं, चलते हैं, किस कदर एक दूसरे से पेश आते हैं, किस तरीके से बैठते हैं प्लेट में, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से बाल बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाहर जाते हैं अलग कपड़े, आते हैं फिर चेंज करते हैं। घर में तो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई घंटी बजाकर पड़ोस वाला आ जाता है तो बिल्कुल शरीफों जैसा बिहेव करते हैं, वापस चले गए, वापस अपने काम पे आ जाते हैं झगड़ने पे। तो ये चेंज होते हैं और तरीके हैं इनके, इनकी पद्धति है, और ये अलग अलग तौर तरीके बच्चा देख रहा है, सीख रहा है बिल्कुल पहले साल में। हालांकि वो प्लेट से खाना खा नहीं सकता, मगर वो देख चुका है ये सब, ये पूरे तौर तरीके इंसानों के सीख रहा है। ये करते करते जब 1 साल हो जाता है तब उसे समझ आता है कि बहुत बार माँ ऐसा हाथ करती है, तो ये हाथ तो उसको लगता है मोटर मूवमेंट है, फिर समझ में आती है कि ये हाथ ऐसे करने के बाद गायब हो जाती है। इसका मतलब ये एक सिग्नल था मुझे कि बेटा अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तब बच्चे को ये सिग्नल है, ये एहसास होता है कि ये सिर्फ मोटर मूवमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है। तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग वन थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन थॉट, वन आइडिया, वन फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज। तो दिस एक्सचेंज इज कम्युनिकेशन, बट इट स्टार्ट्स विद एक्शन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साउंड समझ नहीं आता, एक्शन समझ आता है, और फिर बच्चा समझ के खुद एक्सप्रेसिव नॉन वर्बल करता है, मतलब एक्शन करता है। उसके बाद ये चलते 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 1 महीना 2 महीना हो गया, ये तो समझ आई उसको कि अब मम्मी जा रही है, लेकिन बोलते यार इसके साथ एक आवाज भी आती है हर बार, बाय 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 बाय। हो सकता है कि बाय बाय भी इसी के साथ जुड़ी हुई हो, जैसा ये एक सिग्नल है वैसे हो सकता है बाय बाय भी जो साउंड है वो भी एक सिग्नल है। इसलिए बच्चा इसके ऊपर लोड करता है वर्बल कम्युनिकेशन। जब साउंड को अर्थ आता है, जब साउंड को, जब ध्वनि को एक अर्थ का बोध होता है, तब वो शब्द बन जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन अ साउंड इज, जस्ट साउंड इज मीनिंगलेस, बट व्हेन इट गेट्स अ मीनिंग इट बिकम्स अ वर्ड। सो ही नोज दैट बाय बाय हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। The other person will understand when I say bye bye that it means going away, but I have to look at the other person and say bye bye. So I have to interact, and I should only say bye bye when I'm going away. So ideal communication has 3 parts. Again, this is from New Horizons Child Development Center. कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, शायद हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग का ही ये थॉट है, गलत भी हो सकता है, मगर हम कहते हैं कि 3 बातें IMP, जिसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो I stands for interactive, M stands for meaningful and P stands for purposeful. तो अभी हम आपसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे बैठ के बात करेंगे, बात तो आप ही से करें, लेकिन हम देखेंगे नहीं आपकी तरफ, हमारा टोटल तवज्जो कहीं और है, ध्यान कहीं और है। बैड कम्युनिकेशन, नो इंटरएक्शन। सो इंटरएक्शन इज नेसेसरी। अब हम हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अगर हम जर्मन में शुरू हो गए तो भैया आप कहोगे क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मतलब जर्मन का आपको नहीं है। जो शब्द हम जर्मन में कहेंगे आप जर्मन नहीं जानते, तो मीनिंगफुल नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन। और भैया अगर हम अभी सडनली रेस कोर्स में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप कहेंगे हमें क्या बुलाया सुनने के लिए, पर्पस ही नहीं आने का। तो कम्युनिकेशन के लिए ये 3 चीजें, और अगर ये 3 चीजें नहीं है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ मम्मा 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 कर रहा है, माँ को देख के भी कर रहा है, दीवार को देख के भी कर रहा है, चाचा को देख के भी मम्मा कर रहा है, दादी को देख के भी मम्मा कर रहा है, ग्लास को देख के भी मम्मा कर रहा है, तो ये मीनिंगलेस है। और सबको अलग अलग जगह देख के कर रहा है, मतलब नो इंटरेक्शन, नो मीनिंग, और पर्पस भी नहीं है। तो अगर ये ऐसा है तो ये ट्रू वर्ड नहीं है। और इसलिए हम जो गफलत में आते हैं कि भैया ये रिग्रेशन हो गया, ये कोई रिग्रेशन नहीं था, ये पुअर हिस्ट्री टेकिंग था। क्योंकि डॉक्टर क्या पूछते हैं, वॉज योर चाइल्ड स्पीकिंग? हाँ, यू आर स्पीकिंग। सही बताया मम्मी ने, गलत क्या बोला? अच्छा क्या बोल रहा था मम्मी? आपको मम्मी बोल रहा था? अब बोल रहा था बिल्कुल 9 महीने में, 7 महीने में बोल रहा था, बल्कि 8 महीने में बोल रहा था।
अच्छा ठीक है, और अभी नहीं बोलता 1.5 साल से, हाँ वो वैक्सीन लगाने के बाद से कम हो गया, ओ फिर तो ये रिग्रेशन है, और इसलिए वो वैक्सीन की गलतफहमी उसमें आ गई। गलतफहमी थी हिस्ट्री टेकिंग की, वैक्सीन का कोई लेना देना ही नहीं था। हिस्ट्री अगर आप सही से पूछते तो सही वर्ड नहीं था वो एक्वलिलिया था, वो रेपिटेशन था, समझ के नहीं बोला था बच्चा। तो जब ये वर्बल कम्युनिकेशन बातचीत समझ के आती है तभी बच्चा रेडी होता है नेक्स्ट पायदान पे जाने के लिए, जो है रीडिंग एंड राइटिंग। मम्मी कैसे हैं आप, अगर यही नहीं मुझे बोलने आता है तो MUMMY और उसके आगे का कैसे है, जो भी कैसे, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। तो मुद्दा ये समझना चाहिए कि डेवलपमेंट में अगर बच्चा बैठ नहीं सके तो खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रह सकता है तो चल नहीं सकता है। ये स्टेप्स जरूरी है, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज और सीक्वेंस है, क्योंकि अगर एक स्टेप अच्छी हुई तभी आगे की स्टेप अच्छी होगी। तो फर्ज करिए अगर पहली स्टेप गलत हो गई, अगर पहली स्टेप गलत हो गई, अगर बच्चे ने मनुष्य मग्नता न दिखाई, तो जाहिर है कि वो सोशल बिहेवियर तौर तरीके नहीं सीखेगा ठीक से, तो जाहिर है नॉन वर्बल इशारे नहीं सीखेगा, ऑफ कोर्स वर्बल भी ठीक से नहीं सीखेगा, तो रीडिंग राइटिंग का सवाल ही नहीं आता है। मुद्दा ये समझना चाहिए, समझने वाली बात ये है, जैसे शोले में बसंती कहती है, समझने वाली बात ये है कि सोशल इंटरेक्शन अगर एब्सेंट हो तो बाकी सभी चीजें एब्सेंट होंगी। तो स्पीच इंपेयरमेंट ऑटिज्म में इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, कोर प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। और इसलिए जब तक आप बेस पे काम नहीं करोगे आपका स्पीच इंप्रूवमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। मगर एक इसमें और एक एंगल है इस बात में, बहुत ही एक दिलचस्प बात भी है कि ये बच्चा जो इंसानों में फोकस नहीं कर रहा, जो मनुष्य मग्न नहीं, कहीं तो फोकस करेगा भाई। तो दुनिया में इंसान 7 बिलियन है, लेकिन चीजें मे बी 700 बिलियन है। आपके रूम में देखिए कितनी चीजें हैं। तो जो बच्चा इंसान पे फोकस नहीं करता वो वस्तुओं पे फोकस करने लगता है, और इसे मैं वस्तु मग्नता कहता हूं, और कम मनुष्य मग्नता। और यही सही टर्म होना चाहिए इस बात का, क्योंकि जो बच्चा वस्तु पे मग्न है, जिस तरीके से जो मनुष्य मग्न बच्चा है वो मनुष्य का बिहेवियर और मनुष्य का स्पीच सीखता है, बड़ी सहजता से सीखता है, बड़ी निपुणता से सीखता है कि कैसे कहाँ बिहेव करना चाहिए, कैसे कहाँ बोलना चाहिए। ये बच्चा जो ऑब्जेक्ट्स में मग्न है, वस्तुओं में मग्न है, वो वस्तुओं का मास्टर बन जाता है, और हर वस्तु का बिहेवियर है उसका पैटर्न। अभी आप फर्श पे देखिए, आप सीलिंग पे देखिए, आप आसपास देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, जो भी वस्तु है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको स्क्रीन में नजर आएगी कि एक स्लाइड है और उसमें मेरा एक व्यू है, आपका एक व्यू है, हर चीज एक पैटर्न में है, और ये अपने आप पैटर्न चेंज नहीं होता। तो जो बच्चा पैटर्न का उस्ताद हो जाता है वो कोई भी पैटर्न वाली चीज बाय हार्ट कर लेता है। आप 10 बार उसे गीत सुनाइए वो बाय हार्ट कर लेगा, ABCD कहोगे तो बाय हार्ट कर लेगा, 1 2 3 4 कहोगे तो 1 2 3 4 कहेगा, मम्मा बोलो कहोगे तो मम्मा बोलो ऐसे रिपीट करेगा। वो समझ के मम्मा नहीं बोलेगा कि बोलो, वो उसको एक डायरेक्शन था, वो आपकी बात सुनेगा, मम्मा बोलो मम्मा बोलो मम्मा बोलो ऐसे रिपीट करेगा। मगर इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि भाई हर बार पैटर्न जो होता है ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। अगर अभी मैं मेरे दोस्त को मिलूं तो मेरा बर्ताव अलग है, अगर मैं किसी को नहीं चाहता उससे मिलूं तो मेरा बर्ताव अलग होगा, और कोई मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है तो मेरा बर्ताव तुरंत चेंज हो जाएगा। मगर ये तीनों लोगों को मिलकर जब मैं बर्ताव मेरा चेंज हो रहा है, मेरे शर्ट का डिजाइन चेंज नहीं होगा, मेरे बटन ऊपर नीचे नहीं होंगे, मेरे ऐनक का डिजाइन चेंज नहीं होगा, पीछे जो वॉलपेपर लगा है उसका चेंज नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, पैटर्न्स आर ऑलवेज फिक्स। तो ये बच्चा जो वस्तु उस्ताद है वो पैटर्न सहजता से सीखता है, मगर वो फिक्स पैटर्न में करता है। तो जैक एंड जिल कहीं पे भी बोलेगा, वो दीवार को भी देख के बोलेगा, अंकल को देख के भी बोलेगा। आपने उससे 1 2 3 4 बोला तो कहीं पे भी बोलेगा। 1 2 3 4 लिखने के लिए सिखाया तो एक पैटर्न की तरह कॉपी करेगा। मेरे पास एक बच्चा आया था, डॉक्टर साहब ये तो ABCD लिखते आप क्या कह रहे हो, ऑटिज्म में? बोला लिख के दिखाओ बेटा ABCD, ABC परफेक्ट से शेप और साइज में। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, मुझे M लिख के दिखाओ। डॉक्टर अच्छा वापस ABCD। बोला नहीं बेटा मुझे L लिख के दिखाओ, AB। तो माँ बोलती है डॉक्टर साहब रुकिए रुकिए, वो आएगी L तक। मतलब A to Z एक पैटर्न बैठा है बच्चे के माइंड में, उसको L क्या है ये कंसेप्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 लिख के दिखाएगा, बोला बेटा जाओ 2 आलू ले आओ, तो 2 का कंसेप्ट, 2 आलू लाने का कंसेप्ट नहीं समझेगा। वो 1 2 3 4 तो एक पैटर्न एक है जो बाय हार्ट है, और हर जगह वही प्ले होगा एक रिकॉर्डर की तरह। ये जो हम कह रहे हैं, ये हमने एक थियरी प्रपोज की है जिसका हम इंडियन थियरी हम कहना चाहते हैं इसको, ऑफ सोशल इंटरेक्शन फॉर ऑटिज्म।
और इसकी थियरी यही है कि ऑटिज्म, एक्चुअली कैनर ने जो शब्द रखा था वो सही था, कमिंग फ्रॉम विद इन, मगर पता नहीं किसने इसका अनुवाद कर दिया कि सेल्फ इन्वॉल्व या ये स्वमग्न है। स्वमग्न कौन होता है? जो ऋषि मुनि है, जो ध्यान लगा के स्पिरिचुअलिटी में बैठे, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया, दुनिया में मेरा क्या रोल है, मैं कौन हूँ, ये सब स्वमग्न है। ये बच्चा वस्तुमग्न है। वो बेटी का वीडियो देखिए जो मैंने आपको दिखाया, उसे सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं में इंटरेस्ट था। अगर वो स्वमग्न होती तो मैं बोली, डॉक्टर साहब मुझे जरा शांत बैठने दीजिए, कहीं कॉर्नर में बैठ के बिल्कुल ध्यान में गई होती और एकदम योगा करी होती। वो स्वमग्न नहीं है, ये वस्तुमग्न है। और यही थियरी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि ट्रीटमेंट कितनी गलत दी जा रही है और कितनी सच्चता से दी जा सकती है। और ये गलत दी जा रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 78 ईयर्स के बाद भी आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व करने के बाद कहते हो कि बच्चा इतना ही ठीक होगा, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी थियरी राइट है, ये नहीं मैं कह रहा। हो सकता है 3 साल के बाद मैं कुछ और थियरी ले आऊं, मगर ये तो मैं 3 साल के बाद भी कहूंगा कि ये जो हो रहा है ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। ये मैं कभी नहीं मानूंगा। और जब तक हम नहीं मानेंगे तभी हो सकता है मैं भी नहीं मानूं, आप भी नहीं मानो, शायद आप कोई थियरी ले आए जो मेरे मुझसे बेटर हो और वो शायद सही थियरी होगी। मगर मानना नहीं चाहिए कि 78 ईयर्स के बाद अगर हमको स्पेशल बबल बनाना है बच्चों के लिए कि डॉक्टर साहब थेरेपिस्ट के पास ले गए, थेरेपी हो रहा है, तो मम्मी बोली कि डॉक्टर घर पे कोई डिफरेंस नहीं, तो बोले देखो यहाँ सिटिंग टॉलरेंस अच्छा है, तो सिटिंग टॉलरेंस अच्छा है लेकिन घर पे तो नहीं है। तो एक काम करिए, ये जो पेग बोर्ड है ना, ये कलर्स है, शेप सॉर्टिंग है, ये नंबर्स है, ये आप घर पे करिए। तो हाँ ये सही है, तो मैं घर में काम वाम भी कर सकती हूँ, या मैं काम वाम डैडी बोलते हैं तो ऑफिस का काम कर सकता हूँ। तो पेग बोर्ड ले आए, ये ले आए, वो वाला है, फलाना फलाना चीजें, चीजें क्या है? वस्तु। तो बच्चा बैठ रहा है, फिर वही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पैटर्न लर्निंग कर रहा है। आपको क्या बताया जा रहा है? देखिए सिटिंग टॉलरेंस। अरे सिटिंग टॉलरेंस क्या आचार डालोगे उसका? वो शेप कलर मैच कर रहा है, उसका जिंदगी में क्या मकसद है? आप आज सुबह से उठ के आपने कितने बार शेप सॉर्टिंग की सर? आपने सुबह से कितने बार पजल सॉल्व किए जनाब? क्या यूज है उसका? मगर बच्चा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा घर पे वही बताया जाता है कि करिए। उसके बाद जब कहीं चाचा के बेटे के शादी में भी जाना है तो ये साथ में पूरा सामान ले जाना पड़ता है। बारात दूल्हे की बाहर आ रही है, बेटा अंदर बैठ के शेप सॉर्टिंग कर रहा है। तो ये मेरा कहना है कि मैं किसी की गलती नहीं निकालना चाहता, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें हम कोई ब्रेक या चेंज या नया विचार नहीं लाए तो इसमें चेंज नहीं हो सकता। इतना ही मेरा कहने का मकसद है। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि व्हाट कैन वी डू, अगर हमको करना है तो क्या है? एक तो डेवलपमेंटल कंसर्न्स मान लिए, हर बच्चे का हियरिंग एंड विजन चेक करना चाहिए। स्क्रीनिंग एट 18 मंथ्स आपके पीडियाट्रिशियन से आप खुद एज अ पेरेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकली आप समझना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ है, सीवियर है, माइल्ड है, ये जो सब डिस्कशन चलते रहते हैं जिसके लिए हजारों रुपए लिए जाते हैं आपको रिपोर्ट देने के लिए, एक्चुअली बहुत सिंपल है। पेरेंट भी समझ सकता है कि मेरे बच्चे की अगर लेवल ऑफ देखनी है मुझे तो नॉर्मल लेवल देखिए, क्या इसका इंटरेक्शन नॉर्मल है? अगर वो नॉर्मल है तो क्या इसका बिहेवियर समझ रहा है? क्या समझ रहा है तो नॉन वर्बल समझ रहा है, क्या समझ रहा है तो वर्बल समझ रहा है, और नहीं है तो कहाँ पे? बस इतना ही जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट वही है जो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे ले जाए, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे ले जाए, थर्ड से फोर्थ पे ले जाए। अगर हम ये करेंगे तो मैं बड़े ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि मैंने काफी बच्चे देखे जो इस प्रोसेस से इंप्रूव होते हैं। और इसलिए मुझे इतना कहना है कि एक अगर हम अलग विचार से चले तो अब ये समझना है हमको कि ये बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, कि इसका कॉपिंग ऑफ पैटर्न्स बहुत ही उम्दा है लेकिन सोशल इंटरेक्शन पुअर होने की वजह से बिहेवियर और भी पुअर है, कम्युनिकेशन तो पुअर होने ही वाला है। और अगर ये नंबर जो है इसको हम रिवर्स करें, अगर हम इसको चेंज करें और हम ये देखें कि सॉरी इसके पहले हम देखें कि ऑटिज्म में अगर ये कॉपिंग पैटर्न्स वाला हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, मतलब एक्चुअली क्या है? ये तो आप सभी मानेंगे कि कॉपिंग ऑफ पैटर्न्स ज्यादा होता है बच्चे ऑफ चाइल्ड विद ऑटिज्म में, और सोशल इंटरेक्शन बिहेवियर कम्युनिकेशन कम होता है। मतलब एक्चुअली क्या है? ये जो वस्तुओं से सीखी हुई चीजें वो ज्यादा है, मनुष्य से जो सीखना था सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन वो पुअर है। आपको सिर्फ पेरेंट्स को ये हेल्प करना है रिवर्स करने के लिए कि भैया वस्तु मग्नता कम करिए, मनुष्य मग्नता बढ़ाइए। इतना बेसिक प्रिंसिपल अगर हम समझाएंगे तो बहुत ही उम्दा चेंज हो जाएगा। और मुझे आप बताइए 2 चीजें, इसमें खर्च क्या होगा आपको और साइड इफेक्ट क्या होगा? भले ये चीज थियरी गलत है, कल और कुछ पता चले हमें कि और कोई चीज है, मान लिया, मगर आज ये करने के लिए क्या गलत है?
और आज अगर हम देखेंगे तो सबसे बुरी वस्तु है मोबाइल और स्क्रीन और मोबाइल फोन, क्योंकि जब मोबाइल फोन स्मार्टफोन मिले तो और कोई वस्तु की भी जरूरत नहीं है। तो हमको यही एक्सप्लेन करना है कि वस्तु जो है मोबाइल फोन जो है उसमें सारे और कोई वस्तु की तो जरूरत ही नहीं, तो इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि 3-4 महीने के बच्चे को भी मोबाइल दिखाया जाता है कि नर्सरी लाइन देखे ताकि बच्चा खाना खाए। तो जिस बच्चे में मनुष्य मग्नता बाय बर्थ कम है जेनेटिकली, उसे 20-30 साल पहले कम से कम दादी, चाचा, चाची, मामा, हर आदमी आके उसके साथ बात बतिया रहा था, बात कर रहा है, कोई गाल खींच रहा है, कोई बच्चे को खींच रहा है, तो उसकी मग्नता की पोटेंशियल कम थी, लेकिन मनुष्य इतने थे कि उसकी वो मग्नता बढ़ा देते। आज उल्टा हो गया है कि आज किसी को समय ही नहीं है। एक तो हमारी सिंगल ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो दिन भर दोनों मम्मी डैडी काम पे जाते हैं। काम पे जाते तो बच्चे के साथ क्या करेंगे, कहीं घर पे काम के लिए भी रख दिया तो वो भी अपना टीवी देख रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया। तो अगर ये सिर्फ चीज भी हम रिवर्स करेंगे तो ना इसमें किसी का साइड इफेक्ट है। अभी 3 महीने का बच्चा मोबाइल ना देखे तो कौन सा नुकसान होने वाला है जनाब, ये तो आप बताइए मुझे। तो अगर वो नहीं है तो क्यों ना हम ये करें। और इसलिए फर्स्ट थिंग टू डू इन ऑटिज्म, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद एनी प्रॉब्लम, ऑटिज्म हो या ना हो, आप बताइए कि स्क्रीन स्टॉप करना चाहिए। आप डायरेक्ट बच्चे के साथ इंटरेक्शन करिए। अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो फिर नॉन वर्बल पॉइंटिंग स्टार्ट करिए, जब वो आ जाएगा उसके बाद वर्बल करिए। और एज रिक्वायर्ड टू अ डॉक्टर, प्लीज रेफर टू द डॉक्टर। और फॉलोअप बहुत जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना बार बार कि इस लेवल से बच्चा इंप्रूव हो रहा है नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सालों साल बच्चे इंटरवेंशन कर रहे हैं। मैं किसी का फॉल्ट नहीं कहना चाहता, क्योंकि यही नॉर्मल बताया गया। अभी अमेरिका में बताया तो भाई सही तो होगा, तो अभी मैं गलती कैसे निकालूं? तो जो कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, या वो गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। जो वही कह रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह रहा है, हमारे गाइडलाइंस कह रहे हैं, जो आपको मैंने दिखाया वो। मेरा कहने का मुद्दा है कि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, क्योंकि जब ये मैं डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ तो थोड़े से चेहरे नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब मेरे क्लिनिक में माँ आती है और मैं माँ को ये बोलता हूँ, माँ बोलती है डॉक्टर यू आर 100% करेक्ट, क्योंकि मैंने यही देखा है बचपन से। तो ये जरूरी है पेरेंट्स को बताना कि भाई डॉक्टर, मेरा बच्चा पोएट्री तो बोलता है, नंबर्स तो लिखता है, आप क्यों कह रहे हो कि उसको ऑटिज्म है? तो ये बताना जरूरी है कि ये जो एक पैटर्न लर्निंग है ये हो सकता है, लेकिन वो जो पोएम बोल रहा है समझ के नहीं बोल रहा, नंबर्स लिख रहा है, ये रिकॉर्डेड और बायहेडेड है। और इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू गिव पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इज डू नॉट फोकस ऑन स्पीच। हर पेरेंट आता ही उसके लिए आपके पास, भाई तो मतलब वो क्लिनिक में आया ही बड़े मुश्किल से, मतलब बहुत ही मना के किसी ने भेजा होगा, तो बता भाई मुझे स्पीच चाहिए, आप स्पीच दे दोगे तो बताओ, वरना मैं कहीं और ढूंढ लेता हूँ। कि ठीक है हम स्पीच सिखा देते हैं आपको, आइए बैठिए। कैसे सिखाना है बच्चों को स्पीच? अरे ABCD, एप्पल, ग्रीन, ब्लू, अगर ये हम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, बच्चा आपसे इंटरेक्ट करने लगेगा, तो इंप्रूवमेंट इसकी है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? बच्चा एप्पल, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, 1 2 जैक एंड जिल यही बोल रहा है। तो अभी आप मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं? क्या हम बच्चे की इंप्रूवमेंट करा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम है उसे बढ़ा रहे हैं? क्या हम पैटर्न लर्निंग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? और इसलिए आप देखेंगे कि इतनी हजारों लाखों रुपए की थेरेपी करने के बाद भी इंप्रूवमेंट बहुत ही कम रहता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बस मेरा बच्चा तो बात कर रहा है, कलर वलर सब आइडेंटिफाई कर रहा है, मस्त। ये 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद पता चलेगा कलर तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन आगे नहीं जा रहा है। तब तक ये बताया जाता है कि बस इतना ही एक्सपेक्ट करिए, अभी आगे एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ ठीक है, तब तक तो आदमी का एक माइंड बन जाता है कि ठीक है यार अपसेट हो गए हम तो, ऑटिज्म है और क्या होगा। और ये जो है गड़बड़ी उससे भी है कि डायरेक्ट एकेडमिक्स शुरू किए जाते हैं। अमेरिका में आइडिया एक्ट जो है उसमें ये दिया गया कि स्कूल्स को ही बच्चों को इंक्लूजन करना है, इसलिए पढ़ाई लिखाई सिखानी है। तो मेरा लॉजिकल सवाल यही है कि भाई जब बच्चा बैठ नहीं रहा है, भले 4 साल का हो, जो दौड़ना चाहिए मगर नहीं बैठ रहा है, खड़े रहने का सवाल ही नहीं है, आप दौड़ाने के क्लासेस में उसको डालोगे, भले मिल्खा सिंह खुद आके दौड़ाने को सिखाए, तो जो बच्चा बैठ नहीं सकता उसकी टांगे और टूट जाएंगी। लेकिन उसको अगर बिठाने से आप स्टैंडिंग सिखाओ, स्टैंडिंग के बाद वॉकिंग सिखाओ, वॉकिंग के बाद रनिंग सिखाओ, तो जरूर रनिंग भी करेगा। तो ये गलतियां होती क्यों है? क्योंकि हम रेफर करते हैं ये सोच के, पेरेंट्स जाते हैं सोच के कि स्पीच प्रॉब्लम है तो मुझे स्पीच इंप्रूवमेंट चाहिए, बिहेवियरल प्रॉब्लम है मुझे बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ये गलत फहमी है, क्योंकि ऑटिज्म का प्रॉब्लम टोटली अलग है।
और उसे एक ओवरऑल प्रोग्राम चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को ये सब कराए। और यही हम कहना चाहते हैं इस थियरी से। इसमें बेचने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास कि हमारे थियरी में बनाया हुआ ये स्पेशल पानी है, ये पानी में स्पेशल दवाई है या स्पेशल दुआ है, वो आप ले लीजिए 2000 रुपये हमको एक गिलास का दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज मैंने आपको बोल दिया, मेरे निकल गया मेरे हाथ से, ये समझ लीजिए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी अगर सबको फायदा हो जाए इससे, तो यही खुशी है। इसमें मेरे पास रखने के लिए कुछ है नहीं। आप भी कल से ये फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ी पुलिस को ले आऊंगा और बोलूंगा मेरी कॉपीराइट है इसमें। तो मेरा कहना है जहां तक हो सके ये करिए। और जब हम राइट एडवाइस पूछते हैं कि डायग्नोसिस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मैंने डायग्नोसिस ये देखा है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले डजंट टेल यू व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। स्पीच एंड लैंग्वेज डिले कैन हैव मल्टीपल कॉजेज, हियरिंग लॉस कैन हैव स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इज नॉट द सेम एज दिस। तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस के लिए ये शॉर्टकट ट्रीटमेंट जो है इसको हटा दीजिए, तभी नॉर्मल लाइफ और मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है। और इसलिए जो ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है देखिए, स्पेशलिस्ट को मत देखिए या स्पेशलिटी को मत देखिए कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं या ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डॉक्टर हैं, ये सब्जेक्ट हो गए। कर क्या रहे हैं प्रोग्राम में ये जानना जरूरी है। हेंस टेल ऑल पेरेंट्स, स्क्रीन स्टॉप करिए। तोतागिरी, हम मराठी में यहाँ इसको पोपट बोलते हैं, तो पोपट मतलब तोता, तोतागिरी बंद करिए, रोबोटगिरी बंद करिए, दिन भर ये शेप सॉर्टिंग वाला काम बंद कर दीजिए, डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, ऑडियोमेट्री करना मत भूलिए। व्हाट नॉट टू डू, लड़का है लेट बात करेगा, ये गलतफहमी है। इसके फादर ने लेट बात किया, छोड़ दो, ये भी करेगा, गलतफहमी है। एट द सेम टाइम डू नॉट पैनिक, डू नॉट वरी। गूगल पे इंटरनेट पे देखोगे ऑटिज्म तो हार्ट अटैक आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फोकस ऑन स्पीच एंड डू नॉट डिपेंड ऑन स्कूल। बहुत से पेरेंट्स 3 साल का हो गया, फिर 2 साल में क्यों नहीं आए, हमने सोचा प्ले ग्रुप में डालेंगे तो बच्चों के साथ सीख जाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीच का प्रॉब्लम था ही नहीं। स्पीच के पहले का जो प्रॉब्लम था वो देखना चाहिए था। हर बार आपके पास, आप जो भी प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, टीचर हो, सबसे पहले हर बार जब बच्चा आएगा माँ को पूछिए, आप कैसे हैं दीदी, भाभी आप कैसे हैं, बेटा आप कैसे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक पूछेगा बेटा के बच्चा कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं, अच्छा ये करो वो करो। वो पुअर लेडी को कोई पूछता नहीं आप कैसे, आंसू आ जाएंगे उसकी आंख में। आप जब पहले वो ये नहीं, बच्चे का डॉक्टर साहब ये तो चल ही रहा है, दवाई दी मैंने, तो वो ठीक है बहन, वो तो बच्चे का भी बात करेंगे, आप कैसे हैं बताइए, ठीक है। यू विल फाइंड द ट्रूथ ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस। मेरे हस्बैंड देख मानती नहीं इस बात को, डॉक्टर साहब मुझे तो झगड़ा करके लाना पड़ता है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ डांट रहे हैं एक्सेट्रा, यू नो दैट बेटर। नेक्स्ट, सिर्फ आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैंने बताया कि अभी सोशल इंटरेक्शन बेटर हुआ, जो मैंने आपको बोला था, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, उसके साथ डायरेक्टली खेलिए, मस्ती करिए, मजाक करिए, अच्छा वो हो गया तो ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट टाइम नॉन वर्बल भी कर रहा है, उसके बाद फाइनली वर्बल कर रहा है। और पहले फैमिली में कराइए ये सब, पहले मम्मी डैडी, फिर चाचा चाची के साथ कराइए, नाना नानी, मौसा मौसी जो भी कहते हैं, उसके बाद पड़ोसी, और उसके बाद स्कूल। स्कूल का ये काम नहीं है और स्कूल ये काम नहीं कर सकती जो घर को बाईपास करे। तो हम ऐसे कि भैया हमने बहुत 50,000 रुपए की फी दे दी एक स्कूल में, बहुत ही उम्दा स्कूल है, वो बच्चों को देख लेते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, बच्चा स्पेशल दर्जे का और स्पेशल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा। और यही समझ के आप सोचिए, क्योंकि आपका अगर बच्चा नॉर्मल होना, आप जो हैं, आप और मैं, अगर मैं अपने आप को नॉर्मल कहूँ तो मैं घर में जो था इसके लिए मैं बाहर हो सका। अगर घर में मुझे सही तरीके से बिहेवियर नहीं मिला होता तो बाहर नहीं मिला होता। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने क्विकली एक स्लाइड दिखाई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म में फर्क क्या है? बहुत बार दोनों साथ में भी आते हैं। फर्क यह है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मोटर डेवलपमेंट भी कई बार, नॉट ऑलवेज, मोटर डेवलपमेंट भी उतना ही लेट होता है जितना सोशल कम्युनिकेशन डोमेन। मगर एक खास चीज जो मैंने देखी है, अगेन ये कहीं टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा वस्तुओं में भी उतना ही पुअर है जितना मनुष्य में पुअर है, मगर मनुष्य में उतना पुअर नहीं है जितना चाइल्ड विद ऑटिज्म है, और चाइल्ड विद ऑटिज्म वस्तुओं में चैंपियन है। फिर से बताता हूं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है वो वस्तुओं में भी उतना ही वीक है जितना मनुष्य व्यवहार में वीक है। ऑटिज्म का बच्चा मनुष्य व्यवहार में बहुत ही पुअर है लेकिन वस्तुओं में निपुण है, ये फर्क है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 का टिपिकल एक मॉडल देखोगे तो ये तो बेटी है, सबके पास जाएगी, प्यार से जाएगी, सोशल इंटरेक्शन तो बढ़िया है उसका, लेकिन उसको आप कोई शायद मोबाइल दो तो इतने फास्ट नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर ऑटिज्म का बच्चा है वो किसी के मुंह की तरफ नहीं देखेगा, जैसे वो बेटी थी वीडियो में,
मगर मोबाइल दे दीजिए, कोई भी वस्तु दे दीजिए, बहुत कम बार इनके हाथ से चीजें गिरेंगी और टूटेंगी। बहुत कम बार चाकू से खेल रहे हैं फिर भी उंगली कम बार कटेगी, क्योंकि वो इतने परफेक्ट है ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न में। तो ये बातें उसके बारे में थी। जेनेटिक इवैल्यूएशन व्हेन टू ऑर्डर, जब अगर डॉक्टर बताएं कि कोई फीचर्स, डिस्मॉर्फिक फीचर्स दिख रहे हैं हमें और उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे अभी ये पिक्चर में दिखा है, या अगर नेक्स्ट बेबी के लिए करना है तो ये डॉक्टर्स के पास जेनेटिक्स इवैल्यूएशन के लिए जाना पड़ेगा। ईईजी तभी करना होता है अगर सीजर्स हो, और एमआरआई तभी करना है अगर स्किन पे कुछ बर्थ मार्क्स हो या कुछ डिस्मॉर्फिक फीचर्स हो या कुछ और डॉक्टर के पास ठोस वजह हो आपको एमआरआई करने के लिए। ये गलतफहमी है कि एवरी चाइल्ड विद अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नीड्स एन ईईजी और एन एमआरआई। इस पे अभी मैं और नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन अनलेस देयर इज अ गुड रीजन, डोंट गेट इट डन। मिथ्स तो ये आप तो मैंने सब बता ही दिए कि फादर स्पीकिंग लेट, स्पीच डिसऑर्डर तो है ही नहीं, मगर ये भी मिथ है कि ये टीवी देखने की वजह से हुआ, नहीं, वजह से नहीं हुआ, वजह जेनेटिक है। मगर टीवी दिखाने से, जो मैंने कहा, वस्तु मग्नता को, मतलब आपने आग में तेल डाल दिया, यही बात है। और एक मिथ है कि भैया मेरे बच्चे को स्पीच नहीं आता है, मैं XYZ करूं तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, मेरे को रीडिंग राइटिंग नहीं आता है, मैं XYZ करूं तो ये ठीक हो जाएगा, अगर हाइपर एक्टिव है तो मैं XYZ करूं तो ठीक हो जाएगा। तो ये वो न होने की वजह से तो नहीं हुआ। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो नहीं है कि अब आपने विटामिन डी खिला दिया तो ठीक हो गया। तो ये भेजना जरूर, मगर भेज के हो क्या रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ भेज के अब मैं इसे दवाई दे रहा हूं, मेरा मरीज ठीक हो जाएगा, गारंटी नहीं है। तो दवाई सही जा रही है या नहीं जा रही है, कब तक देनी चाहिए, कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कितना समय लग भी सकता है मगर फिर भी आना चाहिए, ये देखना जरूरी है। ब्लैंकेट भेज के 2 साल के बाद आप पूछेंगे, ये मत करिए। तो लॉन्ग टर्म इनपुट के लिए ऐसा है कि जर्नी इज डिफिकल्ट एंड फैसिनेटिंग बट इमेजिनरी नहीं है। ऑटिज्म इज एन मिस्ट्री, ऑटिज्म इज एन एनिग्मा। ऑटिज्म को ब्लू कलर से बहुत प्यार है, ऑटिज्म के सारे बच्चे जीनियस होंगे, ये एजोटेरिक स्टेटमेंट्स है। भाई इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत है ऐसा नहीं कह रहा, मगर यही सिर्फ कहने वाले जो लोग हैं सिर्फ यही कहते हैं, इनसे जरा बच के रहिए कि और क्या कहना चाहते हैं। तो ये एड्स आते हैं, स्टेम सेल के ऐड आएंगे, ये सेल, वो सब बी केयरफुल अबाउट इट। याद रखिए, मोस्ट चिल्ड्रन आर माइल्डली अफेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ देम विल डू वेल। इफ देयर आर को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम लाइक सीजर्स है, एपिलेप्सी है, फिट्स है, लो IQ है साथ में, मतलब लो सॉरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मैं कहूंगा, तो इम्प्रूवमेंट थोड़ी मुश्किल है और ज्यादा उसमें इंटरवेंशन की जरूरत है। न्यू होराइजन्स में हम बिलीव करते हैं एवरी चाइल्ड कैन डू बेटर इफ यू फोकस फ्रॉम लेबल टू एनेबल। लेबल मत करिए, एनेबल करने का सोचिए। तो स्टॉप लुकिंग एट ऑटिज्म लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड होपलेस सिचुएशन। इट इज कॉम्प्लेक्स बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिनिकल सिंड्रोम विद अ जेनेटिक इटियोलॉजी। जेनेटिक इटियोलॉजी के बारे में मैं कोई जेनेटिक साइंटिस्ट नहीं हूँ, वो साइंस चल रहा है। क्लिनिकल के बारे में 18 साल में मैंने हजारों जो बच्चों के साथ लाखों सेशंस किए और उनके साथ, उनको हर बच्चे को जो मैंने देखा मेरे टीम के साथ, उससे जो मेरा थोड़ा बहुत जितना अनुभव है वो मैं आपके सामने मैंने जाहिर कर दिया। और इट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई 5 सेंटर्स, माई पीपल, हंड्रेड्स ऑफ टीममेट्स इन द इयर्स माई वर्क विद एट ऑल द सेंटर्स। हर बच्चे को हम साथ में देखते हैं, हर बच्चे का फॉलोअप करते हैं, कौन सा बच्चा ठीक जल्दी हुआ, कौन नहीं हुआ, ये सोच सोच के। प्राइवेट सेंटर है, हमको रिजल्ट भी देना है, अच्छा है, इसलिए वजह से ज्यादा सोच सोच के वी कुड कम आउट विद सम आइडियाज। और ये ऑल इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस वंडरफुल पीपल, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर जो हैं, साइकेट्रिस्ट हैं हमारे मित्र, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई रेमेडियल एजुकेटर्स हैं, कोई काउंसिलर्स हैं। इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मगर एक बात याद रखिए, हम सब के ऊपर जो है वो बच्चा है। बच्चे की जो जरूरत है वो हम प्रोवाइड करना हमारा काम है, मगर जरूरत फिक्स नहीं है कि अगर बच्चे का ये डायग्नोसिस है तो इसको ये पैकेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे का कोई पैकेज नहीं है। बच्चे का एक ही काम है हमारा कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाए। और वो करने के लिए हर स्टेप पे क्या कराना पड़ेगा, क्या खिचड़ी पकानी पड़ेगी उस स्टेप पे, वो पकानी जरूरी है। और उसके लिए शायद डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन कर सकता है। मगर उस स्टेप से बच्चा दूसरे टेबल पे चले जाए तो उस टेबल पे अभी नई खिचड़ी बननी चाहिए, क्योंकि उस टेबल से अगले टेबल पे ले जाने के लिए जो न्यूट्रिशन लगेगा, मैं मेंटली कह रहा हूँ, न्यूट्रिशन जो थेरेपीज लगेंगी वो चेंज होती है। अगर वही थेरेपी मैं बच्चे को दे दूं तो बच्चा वो सीखे और वही करते रहेगा तो क्या मतलब है, इसे आगे ले जाना है। इसलिए कोई फिक्स पैकेज नहीं आता, कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं आता। और फाइनली ये अगर नॉलेज अगर क्लियर है अपने माइंड में, तो आज मेरा तजुर्बा ये है कि पिछले 8 महीने से हम ऑनलाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं, पेरेंट्स का कोचिंग कर रहे हैं।
और आज भी मैंने 2 बच्चे देखे जिनको मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो पैंडेमिक में ही हमारे पास आ गए। दोनों बच्चों को मैं पिछले 4 से 5 महीने में ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं हम, और दोनों बच्चे इतने अच्छे, मैं आपका टेस्टिमोनियल आपको दिखा सकता हूँ। हालांकि आई हैव नॉट चेक द चाइल्ड फिजिकली और सीन द चाइल्ड, बट अगर आपका डायग्नोसिस सही है, अगर आपका लॉजिक सही है, आप उनको सही एडवाइस दोगे, तो एट अ यंग एज बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। फाइनली थैंक्स टू हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स का जो चैप्टर है उसके हमारे सहकारी हैं, उनको मेरा लाख लाख शुक्र है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे लाइफ में जो भी मेरा लिटिल बिट जो मैं आपके सामने आज पेश कर सकता हूँ, ये ओनली एंड ओनली बिकॉज मेरे न्यू होराइजन्स के जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नॉन क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, रिसेप्शन पे जो काम करते हैं, ऑपरेशंस में काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, ये पूरे फैमिली के बगैर आई एम जीरो। और इन्हीं के बदौलत जो भी हमने देखा है, जो भी हम फैमिलीज को हेल्प कर पाए, इट इज बिकॉज वी आर ऑल स्टेइंग टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई माय प्ली टू एवरीबॉडी इज वी कैन नॉट वर्क अलोन, वी कैन नॉट हेल्प द चाइल्ड अलोन। कितने भी कोई भी माहिर हो, हमको एक साथ ही काम करना है। अगर बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों की ये परवरिश अच्छी हो और स्पेशली ये प्रॉब्लम से बच्चे निकले, तो हमें अपना ईगो हटाकर एक दूसरे के साथ काम करना है कि भाई देख, ये तेरा काम है, अब तू ये टाइम तेरे काम का, मेरा ये काम है, मैं ये करूंगा, तू ये कर। दोनों मिलके फिर चेक करना चाहिए बच्चों को कितना फायदा हुआ। हमें कोई ये खास ट्रेनिंग नहीं मिली है, मगर एक बात मैं और जिक्र करूंगा कि जो भी हमारा बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग था और आज भी हम जो सीख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, जिसके 3 फरिश्ते हम जानते हैं। नवल भाई स्माइल कर रहे होंगे, तो 3 फरिश्तों का मैं उनको, नवल भाई मैं कहता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनको, दीज आर माई फेरी गॉड मदर्स, दीज आर माई फेरी गॉड मदर्स। तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक है जेन मैकरा, एक है कैथरीन मैकलेन जिसको हम केट कहते हैं, और एक है पैट्रिशिया ऑस्बोर्न जिसको आप परसों सुनने वाले हैं। भाई अगर किसी के पांव मुझे छूने पड़ेंगे तो यार उनके पांव छूने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने दिमाग में डाला भाई ये इश्यू है, इस पे काम करो, और हम जो सिखा रहे हैं समझो। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हम कह रहे हैं यही करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम ये समझ रहे हैं, आप समझो अब क्या करना है। और ये हम नवल भाई से हमारा रिश्ता उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की वजह से हम जानते हैं नवल भाई को, हमको जो ब्लेसिंग है वो सब यही है। और इसलिए जब वो पैड परसों आएंगी, आपका बहुत ही, मैं कहूँगा, मैं मेरा गुड लक मानूंगा जो अगर मैं सुन पाऊँ उनको, तो आप जरूर परसों उनके टॉक के लिए आइएगा। वर्ल्ड में क्या हो रहा है बेस्ट वो आप बताएंगे आपको। बस इतना ही मुझे कहना है, और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने आपका। तो नवल भाई ने कहा था 30-40 मिनट्स कर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो माफी चाहता हूँ आपसे। और जो भी मैंने आपके सामने कहा है, ये एक मेरा तजुर्बा कहिए, एक छोटा सा एक्सप्रेशन ऑफ माय फीलिंग्स कहिए, मोर देन माय थॉट्स, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सी गलतियां हो, बहुत सी मिस्टेक्स की हो मैंने, मेरे अनुभव मेरा गलत हो सकता है, और आप किसी को भी हर्ट करने का मेरा कतई कोई इंटेंशन नहीं है। और अगर फिर भी गलती से किसी को हर्ट हुआ होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम सब बहुत ही पैशनेट इसके बारे में, और हम सब तहे दिल से काम करते हैं। मुद्दा हमारे इंटेंशन का नहीं था, मुद्दा यह है कि हम किस नजरिए से ऑटिज्म को देखते हैं। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, एक साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों का जो ये अवेयरनेस सीरीज है वो चेंजिंग द परसेप्शन पे बेस्ड है, और इससे बेस्ट अप्रोच हो नहीं सकती टू चेंज द परसेप्शन। जो सोसाइटी है उस लेवल पे भी, और जिस लेवल पे जो ट्रीटमेंट जिस लेवल पे होता है वहाँ पे भी हम सबको एनरिच किया है। हम सबके लिए जो लोगों को, जिनकी फैमिली में कोई है जिनको ऑटिज्म है, या किसी आस पड़ोस में जानते हैं, या जिनका अभी तक ऑटिज्म से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, उन सबके लिए कुछ ना कुछ था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शायद मुझे लगी, जो शायद मैं करेक्ट करूंगी, वो है वस्तु मग्नता। कि हम सब आजकल इतना स्क्रीन से इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हम भी जो सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ है उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो आपकी टॉक से हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, इंस्पायर होने को मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नवल चंद्र पंत,
Chairman Paisam. Thank you so much, Sameer. And yes, he's right. हम लोगों ने केट, पैट एंड जेन इन लोगों से बहुत सीखा है और वही सीखा हुआ वही अप्रोच हम लोग कोशिश करते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज में. ऑफ कोर्स उस अप्रोच को और होलिस्टिक बनाने की कोशिश की है और आपने जो आज इतनी सारी चीजें इतने कम वक्त में बता दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही है अवेयरनेस सीरीज, तो हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो 8th थर्सडे को है, 8th अप्रैल को. तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं उसके कि आप 8th को भी हमें ज्वाइन करें. और हमारा जो टॉपिक है उस दिन हम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड. तो आप सबका स्वागत है. अगर आप पाइसम के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट विजिट करिए. एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते.